projects of the same domain. Other than that, in my free time, I also work on Synek. Synek is basically a red teaming and bug bounty platform. How is it different from HackerOne and Bugcrowd? Basically, this platform is a bit private platform. Only the curated and the best talent from all over the platforms or all over the world only are allowed to join Synek. So that's one of the things normally people go for Synek. And there are other benefits too, which I don't think we should talk about, as this presentation is not about that. Okay, so in terms of overall experience, I've been working in industry for last I guess more than 7 years. I even started working before my bachelor's degree, so it's been more than 7 years since I've been working in this field. In terms of certifications, I don't normally write certifications in an introduction paragraph, but if someone interested, I'm certified as OSCP, OSCE, GXP, and EMAP, ECPTX, and there are many others. If someone is interested, I can share the list. Okay, the topic for today is, I guess, pen testing using Burp Suite. For those who know Burp Suite, that's well and good. But for those who don't really have any idea about what Burp Suite is, so I'll just give a basic introduction of Burp Suite. Burp Suite is basically and it's normally used for application security purposes instead of server security or network side things. Burp Suite is very efficient to basically a reverse proxy tool. Some people may call it middleware proxy tool. So, what basically is a reverse proxy? Reverse proxy is something which stands between your browser and your network. Okay. So, as an example, let's say that we have this web application. Okay, so if I am clicking this button, it'll generate or it'll fire up some HTTP request, but I cannot see that request. So if I want to see that request, I'll have to forward or reverse proxy this request to some middleware proxy which can translate it into the HTTP format which I am interested in. Okay, so at its core, Burpsuite is basically a reverse proxy tool which can let you see all of your browser interactions in a plain HTTP format. Uh, in terms of usability, most of 90% of the application security researchers or pen testers use Burpsuite because we have been working closely with the teams from many different countries and with many different research labs and firms. And mostly, I have noticed that 90% of the application security researchers use Burpsuite. There are many. I guess pros to use Burp Suite. One of the reasons why I use Burp Suite is because there are many extender modules available. So I don't really have to write every module by myself. For example, if there is a banking mobile application and it has a AES encryption on its network layer or on each of its requests. So to if even if I gather the a key or and the IV, I'll have to decode every request using the script I write, obviously, by providing the key and IV, and then it will decrypt the request, and it will create a lot of hassle for me because there will be requests which I'm not interested in. So even I'll have to decode those requests too to see that what where they are pointing at. So for this purpose, I already I get ready-made plugins or modules available for Burp Suite, so I don't really have to write it myself. So these are some of the reasons that people normally go for Burp Suite instead of Zaproxy. Zaproxy is also a OWASP written tool, similar as Burp Proxy, but it does not really have that kind of features which normally at least I use. So I guess this is a short introduction about what Burp Suite is and the the
technologies being used to develop WebSuite. It's basically a Java application. As most of you who have installed it, they already know that now it's also come in exe format, but normally it used to come in a jar file. So jar file, we all know that it's basically a Java compiled file. So there are two versions of WebSuite available. One is a free version and one is a professional version. There are minor differences between the free version and the professional version. The professional version, right here, the version I have, it's a professional version. The only difference which you'll notice here is that it has a scanner module. Though we don't really use the scanner module, at least I don't use it. So there is a scanner module here which is not available in free version, and there is another attack type which is called CSRF. So in professional version, you can make the POC of CSRF automatically, but in the free version, you have to write it yourself. And there is some difference in the intruder. We'll talk about it when we, go towards this. Okay. Uh, okay. So these are the basic and default modules available in Burp Suite. The first one is Target, Proxy, Spider, Scanner. For those who have installed the newest version of Burp Suite, they won't really see the Spider module anymore, because Burp Suite has transformed it into auto spidering mode. So you don't really see the spider module anymore, although the one I'm using the older version, so you'll see this tab here, but in the newer version you won't be able to see this because it's on auto spider mode. Other tabs will be same: the repeater, sequencer, decoder, comparer, and extender. We'll talk about these once we get more deep into the discussion. Okay, so the first and most important thing which you need to understand is the target module. So what basically is target module? We'll understand by example. Okay, so for those who haven't really used Burp ever, first of all, you'll need to, because we have already talked about that, you need to send the traffic to some middleware proxy. So for that, you need to make some changes in your browser settings. I prefer everyone, and I recommend everyone to use Mozilla, because there are certain things which which won't be able to do in Firefox. So I recommend everyone to use Mozilla for this. Okay, so if you go in here and you just turn on this manual proxy, and in this HTTP request setter, you just give the local host address 127.0.0.1 and the port is 8080, and just take this button which says that also use this proxy for FTP and HTTPS, and you'll be good to go. But as one of the other alternates of this which I use, it's basically this extension called Foxy Proxy. Once you add this extension in your Firefox module, just enter this 127.0.1 there, because once you open this, as I have already added this, but if you want to add something new, you will just click add, and you will give 127.0.0.1 here and port 8080 here, and everything else will be default, and you can save it here. Okay, so once you have forwarded your traffic from your browser to your Burp module, just click on this, which says that 127.0.1 for all URLs. Once you click this, now it will start sending all of the request data to the Burp module I have started here. So if I click on this sign in button, as you can see, it shows me that it's loading. Okay. But if you go into this proxy tab, you'll see that the request is stuck here, because I have turned the intercept on, and it says that request is to this, and IP is this, and it's a raw request. If you want to see just the parameters, you can choose parameters tabs, and then headers and hex values. So from here, you can either change this anything from here and then forward the request, or you can just simply forward the request from here. Because I just want to show you the target type functionality, so I'll just forward this request from here.
And there is another module request. I'll just turn the intercept off so that I don't have to come back here every time to forward every request. Okay, so you will see that it will start everything which your browser, every request that your browser is generating, or this Altura Mutual is referencing or getting something from some other site. It also logs all the direct references and indirect references either from these websites or from your browser modules which are generating the requests. So if I want to test this and my target is this, okay. So first I need to add this into my scope. So there, if you right click on this, there will be a button which says that add to scope. Okay, you will just click to this. It will say that you have added an item target scope. Do you want web proxy to stop sending out of scope items to history or other web tools? Okay. So why are we adding this? I'll explain the concept of adding this as a target. Even if you add this, you will see that a lot of references gets it will keep adding here because and you might think that why are these references keep adding here as you have already selected the Altura Mutual as your target. So this that functionality is not used or used for here. Basically, once you get into the HTTP history tab, now it will only after that you have added it into your target. It will only keep the request. It will only log the request from your on which the target you have already chosen. So it won't log the request of any other site which is not which is not selected as your target. So okay, so why do we need this history tab? Even if even if I have turned the intercept off, if I go to some other page, you'll notice that even if the that thing is turned off, which is active interception, you'll see that you'll see the request which I'm making as from here. You'll see those requests being generated in the target tab, in the history tab. So so while testing, there are points where I don't really have to see every request and intercept every request, but I just want to intercept certain requests. But there might be a chance that I'll miss some request, or I'll have to see those requests later on in my testing. So this is where it comes handy. Because I can see all of the requests and in here, and I can change those requests and basically send it to repeater and then change it and see the response. Are we taking the questions in the end? Yes, I believe that. Okay, if anyone has any confusion, they can write in the text box even now. If anyone wants to ask anything, just write in this meeting chat, and I'll be more than happy to answer your queries on the go. Okay, so from here we'll go towards as we have already discussed the target tab and its functionality. Okay, so you might see this these issues tab here in your free version. You won't see this, but these are just normal issues that clears test submission because it's working on HTTP. It's not HTTPS. That's why it's showing that the credentials are being submitted on a clear text, and there are some other you know things which BuzzFeed normally presents you as the issue, but these are not basically issues. These are information. There's a certain information which comes in handy sometimes, and sometimes it does not really matter. So from here we'll go towards the other functionality. uh, Okay, so we are basically clear about the target module and what it does. The other one is the proxy module. Although we have already seen the proxy module in action,
This is the proxy module. When it says the intercept is off, you want to be able to see the requests in active mode. And once you turn on this intercept, you can see all of the requests as such. This one here in the target in the proxy tab, which is intercept tab, is an intercept is on, and you can just, if you want to, you can just change anything from here and then see the response change. And what if if you remove this referer header, and how the response will change from here, you can even look at that. So basically, once you forward this request, you will see that only then it will display the response in here. Okay, so one other thing which you need to understand here is that not only the requests are intercepted, okay, because we have already talked about that this is the middleware proxy. So by default, if it can intercept the request, it can also intercept the response, okay. So even if there is these are incorrect login details, so if you see that this is pointing to do login functionality in such a post request, and the host is this, user agent is this, except encoding language. These are not for your reference right now. And in the UID format, you will see that this is the username field, and this is the password field, and the button submit is pointing towards the login function, login method. Okay, so if now there is a scenario that in which I want to intercept the response, and I want to change the response so that I can see that how the browser will parse it. Okay, so what I'll do is I'll just right click here and I'll go into do intercept, and from here I'll just click on response to this request. Now what it'll do is it'll forward this request, and once it receives the response of this particular request, it will also intercept that, and it will show me that here too. Okay, also I'll just forward it from here, and this is the response. Okay, this is the response, it's not a request. So because we can see that server, it's being returned from a server, which is this, and the location is this, and the connection is closed because it's not a synchronous connection. And it says that the HTTP code is 302, which is found, and it basically reverts back me to now you'll see that it's still in the loading position because I haven't really forwarded this request to my browser. Once I forward this request, then you'll see now they'll display me that we are sorry that but this username and password was not found in our system. So which is an error message that the login is not successful. Okay, so this is the functionality of the proxy tab. We have already discussed about the intercept. We already discussed about the history tab. We can even sort this out on the basis of parameters. So if we click on this, and I just want to see the request which contains the parameters, so I'll be able to see them here, because the parameters click says that this request has parameters, and this kind of request does not have any parameters, so that's why it's not clicked there. It also tells me that if I have edited some request, and if I have not we haven't edited any of these requests, but we edited this one login request in which we removed the referrer header. So that's why it says that I have edited one request. And if I want to see that, I'll just click in here, and it will show me that original request. Then it will show me the edited request. You can see that referrer header is not present here because we had explicitly removed that from the request, from the original request. And this is the response of the edited request. Okay. Okay, so targets tab is not important to you anymore because yours one is already on auto spider mode. But in this version of Burp Suite, we had to turn spider. We have to explicitly ask to Burp Suite to spider this host. So I'll just spider this, and you can see that it shows me that spider is running, and it will just create a lot of noise here, and it will start filling it with different links and all, because we already talked about that it logs all the direct and indirect references from hyperlinks or anything which the website is getting request from.
The WebSockets thing is not for your reference right now because I don't know if you guys know about the WebSockets or not. So I'll just save it for later. If you want to, sometimes we need to add something in here because sometimes we are accepting connections from some other device or some for example, there is a mobile device. I would want to also able to, we want to just intercept that request too. So we need to add the rule here, which is the IP of that connected device and the bind the port, and we can assign it some different port so that we can differentiate between the requests. For now, that's all you need to know. And once the spidering is complete, you will be able to see a target tree here. So basically, these are the folders and basically subfolders which are accessible on this web application or website. You can see these are the different pages, and this is basically a hierarchy of this web application, which we can see here. This is Swagger modules, which is used for API and those requests. And basically, this represents most of the functionality this which is present on this application. But keep in mind that this all functionality is spidered before we are authenticated or before we are logged in. So we want to be able to see the functionality which is only visible after login. So that won't be that won't be displayed here. So we'll just spider this one more time, whenever we authenticate and log in into this application, so that we can cover the whole attack surface and don't leave anything behind. I'll just see that if we have any question. Okay. So right till now we don't have any questions, so we'll just continue with this. If someone asks want to ask anything, we have time, so you can ask anything before we proceed further. If and none of you have any question, we can proceed further. I'll just wait for 2 minutes. So if anybody has any questions, they can raise their hand or ask the instructor, or they can just write in the chat box. Okay, so there's one question that what to do if we want to capture traffic of Wi-Fi router. Okay, this tool is not used to capture traffic for Wi-Fi routers, because those kind of traffic is, we call it MITM or man in the middle attack. So this kind of tool is not used for MITM. It's basically only used for the application security thing. If you want to capture the network traffic, you will have to go towards the EtherCap or the Wireshark. Those will be two more specific tools for that kind of a testing. But we are not concerned about the Wi-Fi traffic or the router traffic right now. Okay, so Spider works simply as that it will just try to it basically just how the any of the web spiders, if someone has or any web crawler if someone has worked on it, basically just go towards every hyperlink and every link the which is publicly accessible through the website, and it just logs all of that all of those links, and it just displays it in the hierarchy. And basically it's on in the backend, it's simply a crawler which is crawls the whole application and then curate the results into a presentable form, and then it basically displays
whatever it has found in the spider tab or the target tab. You can think of it as a crawler. Okay, I'll try to keep it bilingual if that's necessary. The website we are working on right now, it's also a live website, so it's not working on my local machine. So if you can also follow through if you want. It's available on this link. It's a basically open source project by IBM, so anyone can test this. If there are no more questions, then we can proceed further. I'll just wait for one more minute. Okay, I think we should proceed further. Okay, so one of the person asked to keep also in Urdu, so we'll try to keep this bilingual. अच्छा तो अब यहाँ तक हम आ गए हैं जहाँ तक हमने स्पाइडर की फंक्शनैलिटी देख ली है, टारगेट देख लिया और प्रॉक्सी टैब की देख ली है, ठीक है। स्कैनर हमारे स्कोप में फॉल नहीं करता स्कैनर का मॉड्यूल, सो हम इसको देखेंगे नहीं क्योंकि हम इसके बारे में ऑटोमेटेड टेस्टिंग के बारे में हम बात कर नहीं रहे हैं इस वक्त। The next thing which we want to see is this repeater tab. अच्छा, अब repeater क्या होता है? Repeater as the name suggests, repeater simply यही करता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जांपल इधर से कोई भी रिक्वेस्ट उठा लेते हैं प्रॉक्सी टैब से। लेट्स से ये लॉगिन की रिक्वेस्ट थी, ठीक है। मैं ये लॉगिन की रिक्वेस्ट यहाँ से अच्छा मेरे पास अगर कोई क्रेडेंशियल्स वाली रिक्वेस्ट हो, हाँ ये वाली उठा लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से ये रिक्वेस्ट उठा रहा हूँ और मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको कह रहा हूँ सेंड टू रिपीटर, ठीक है। अब मैंने जब रिपीटर को भेज दिया तो अब आप देखेंगे कि रिपीटर टैब में ये ऐसे नजर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट का टैब है और ये रिस्पॉन्स का सेक्शन है। अब जो मैं रिक्वेस्ट यहाँ से करूंगा उसका रिस्पॉन्स मैं लाइफ टाइम में यहाँ देख सकता हूँ। द HTTP रिस्पॉन्स, मैं उस रिस्पॉन्स की बात नहीं कर रहा जो आपका ब्राउजर आपको पास करके दिखाता है, ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। अगर मैंने इसका रिस्पॉन्स देखना है तो मुझे इसका रिस्पॉन्स यहीं पे नजर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर मुझे कुछ निकालना है, कुछ एडिट करना है, इस रिक्वेस्ट में कुछ भी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पासवर्ड की फील्ड चेंज करना चाहता हूँ, पास करना चाहता हूँ इसको, तो इधर ही मैं इसका जो वो होगा वो रिस्पॉन्स है वो यहीं लाइफ टाइम में देख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ कि मैं उसको प्रॉक्सी टैब में जाके पहले इंटरसेप्ट करूँ फिर उसका डू इंटरसेप्ट पे लगा कर उसका रिस्पॉन्स देखूँ, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट है जिसको मैंने बार बार चेंज करना है, बहुत ज़्यादा बार चेंज करके उसका बार बार रिस्पॉन्स देखना है और रिस्पॉन्स की बेस पे मैं कोई वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में फिर हम रिपीटर यूज करते हैं जिसमें हम बात इन द मीन मतलब रियल टाइम में हम लोग रिक्वेस्ट एडिट कर करके उसका रिस्पांस देख रहे होते हैं। और अगर किसी जगह पे हमें रिस्पांस ऐसा नजर आता है जो कि हमें लगता है कि ये कुछ वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी की तरफ चीज जा सकती है, तो फिर हम उसको फर्दर टेकअप कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर ये कहीं रिडायरेक्ट कर रहा होता है तो वो आपको इधर फॉलो रिडायरेक्शन का पेज दिखा देता है। फॉर एग्जांपल ये मुझे उसी नॉर्मल पेज इसी वाले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, तो वो मैं फॉलो रिडायरेक्शन करना नहीं चाह रहा। बाकी यही होता है, आप मल्टीपल रिक्वेस्ट जो हैं वो रिपीटर टैब में भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई और रिक्वेस्ट भेजनी है तो मैं इधर से भी सेंड टू रिपीटर करके उसको रिपीटर टैब में भेज दूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये दूसरी रिक्वेस्ट
Shamail, your mic is mute. Can you hear me now? Yes. Okay. Yes. अच्छा, तो ओके, हम बात कर रहे थे रिपीटर टैब की। रिपीटर टैब में आप इस तरह से रिस्पांस जो है वो मीन इन रियल टाइम में देख सकते हैं। इसको हम इधर से फॉरवर्ड कर देंगे और रिपीटर में आपको यहीं पे उसका रिस्पांस नज़र आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल HTTP पेज का रिस्पांस होगा तो वो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने रिपीटर टैब देख लिया। ये नॉर्मली इसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसमें भी आप हेडर्स और ये हेक्स वैल्यूज HTML और इसको रेंडर करके पेज को रेंडर करके भी यहाँ पे दिखा देता है किस तरह का UI भी किस तरह का लग रहा होगा। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे अगला जो मॉड्यूल है या जो टैब है वो होता है इंट्रूडर टैब। इंट्रूडर टैब बेसिकली दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है नॉर्मली। एक फजिंग के लिए यूज़ होता है और एक ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूज़ होता है। ब्रूट फोर्सिंग एज अ नेम सजेस्ट, सबको मेरा ख्याल पता ही होगा कि ब्रूट फोर्सिंग इज़ बेसिकली कि अगर मैं किसी पेज का ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल या लॉगिन पेज है वो बाईपास करना चाहता हूँ, तो मैं अगर सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे यूज़र एंड पासवर्ड है और जो एप्लीकेशन है उस पर कोई रेट लिमिटिंग वगैरह नहीं लगी हुई, तो सिंपली आप जो आपको लगता है कि ये यूजर नेम पासवर्ड है या इवन आप कोई रेजिक्स भी लिखना चाहते हैं जिसकी बेस पे वो ऑटोमेटिक एट द रियल टाइम म्यूटेट करके जनरेट कर रहा होगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। आप ब्रूट फोर्सिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ यूज़र नेम और पासवर्ड डालें और आप हर कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहते हैं और किसी कोई कॉम्बिनेशन सही निकल आता है और आपको वो लॉगिन दे देता है, तो बेसिकली वो आपका ब्रूट फोर्स अटैक हो जाता है। फजिंग जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज में अकर कर सकती है। वो फिर काफ़ी टेक्निकल बात, आगे वल्नरेबिलिटी की तरफ हम चले जाएंगे जो कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी शायद आपको समझ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर ऑथराइजेशन इश्यूज और ऑथेंटिकेशन इश्यूज की तरफ बात चली जाएगी, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फॉर नाउ। सो विल कीप इट, अभी के लिए हम ब्रूट फोर्सिंग पे ही रहते हैं। उसके बाद एक एक जो है हम एग्जांपल फजिंग की भी देख लेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि फजिंग कैसे हो रही होती है, लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में होगी। फजिंग इज़ अ वेरी वास्ट थिंग, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में फजिंग की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये साइन इन का पेज है। ठीक है, मैंने क्या करना है कि मुझे एग्जैक्ट यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता है। मुझे मेरे पास एक लिस्ट है या मेरे पास बहुत सारे यूज़र नेम पासवर्ड हैं जो कि मुझे लगता है कि इनमें से शायद कोई ठीक होगा। ठीक है, तो मैं उसको इधर ये कर देता हूँ और इधर ये करता हूँ कि मैंने तो ये रिक्वेस्ट सिर्फ सिंपली अभी जो है अभी के लिए मैंने ये रिक्वेस्ट सिर्फ इंटरसेप्ट करनी है, तो इधर मैं जो भी दे दूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल मेक श्योर दैट कि मेरा इंटरसेप्ट ऑन है। इसको मैं यहाँ से फॉरवर्ड करूँगा अपने बर्ब में, यहाँ से मैं इसको भेज दूंगा इंट्रूडर को। ठीक है, आप रिजनरेट करेंगे और आप कह देंगे कि सेंड टू इंट्रूडर। ठीक है, ये इंट्रूडर के पास आ जाएगा। अब इंट्रूडर का टैब आपको यहाँ पे इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, अब ये टारगेट का टैब है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पोजीशंस में जाएंगे तो यहाँ पे जो मैं काम करना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे क्लस्टर बॉम्ब चाहिए। ये हम बाद में बात करेंगे कि ये डिफरेंट 4 फंक्शनलिटीज क्या हैं। अभी के लिए मुझे क्लस्टर बॉम्ब चाहिए। इसको सब पहले ये कुछ हाईलाइटेड आप देख रहे होंगे यहाँ पे चीज़ें बर्ब ने पहले से की हुई हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हम क्लियर कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और मुझे सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड को हाईलाइट करना है। इसको करके मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, इसमें आपने सिर्फ जो आप यूज़र एंटर्ड इनपुट वाली फील्ड थी आपने सिर्फ इसको करना है, आपने इस पूरे पासवर्ड की फील्ड को ऐड नहीं कर देना। फॉर एग्जांपल जो मैंने डाला था सिर्फ ए और इधर भी ए, तो मैंने सिर्फ उसको सेलेक्ट करके तब मैंने ऐड का बटन दबा देना। ठीक है, अभी मैंने 2 फील्ड्स ऐड कर दी हैं। इसके बाद मैं जाऊंगा अपने पेलोड के सेक्शन में। ये पेलोड पहले वाला है, जो कि जो पहला सिलेक्ट किया था वो पहला होगा। ठीक है, ये पेलोड 1 है, ये 2 है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में मैंने सिलेक्ट किया वही सीक्वेंस में ये इस तरह से होगा। अच्छा, अब ये पेलोड 1 है, मैं इसको कहता हूँ कि मैंने इसको एक सिंपल लिस्ट देनी है। अब यहाँ पे मैं लोड भी करवा सकता हूँ लिस्ट, अगर मेरे पास कोई TXT या किसी फॉर्मेट में लिस्ट पड़ी हुई है
तो मैं इसको लोड करवा दूंगा और वो यहाँ पे उसको पार्स करके यहाँ पे उसका सारा डाटा ले आएगा। लेकिन मेरे पास मैं कोई लिस्ट ऐड नहीं करवाना चाह रहा, तो मैं इधर से ही कोई रैंडम चीज़ें ऐड कर देता हूँ। आई थिंक मोर देन इनफ। मैंने ये 6-7 जो है वो यूज़र नेम इधर ऐड कर दी हैं, ठीक है। और मैंने बाकी मैं कुछ भी नहीं फिलहाल छेड़ूंगा यहाँ पे। और मैं इधर अब दूसरी लिस्ट इसको मैं यहाँ से फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि ज़रूरी ना रहे। अच्छा, अब मैंने दूसरा है, यहाँ पे मैं सिंपल लिस्ट रखूंगा और इधर मैं कुछ पासवर्ड्स एंटर कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने कुछ पासवर्ड्स ऐड कर दिए हैं। अब आखिरी हम ऑप्शंस देख लेंगे, मुझे इसको भी फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं टारगेट्स में जाऊंगा और यहाँ से सिर्फ मैं सिंपली स्टार्ट अटैक कर दूंगा, ठीक है। अब ये करेगा क्या बैकएंड पे कि ये जो मैंने फील्ड्स ऐड की हुई हैं और फिर जो मैंने पेलोड्स ऐड की हैं, ये हर वर्ड के अगेंस्ट हर पासवर्ड का वर्ड और हर यूजर नेम के अगेंस्ट हर पासवर्ड और हर पासवर्ड के अगेंस्ट हर यूजर नेम टेस्ट करेगा। और अगर कोई सक्सेसफुल होगा तो वो मुझे रिस्पॉन्स में नजर आ जाएगा। मैं यहाँ से सिंपली स्टार्ट अटैक कर दूंगा इस पे। और आप ये देखें कि उसने सारे कॉम्बिनेशन, जो 42 कॉम्बिनेशन बनते थे जितने मैक्सिमम बन सकते हैं, ठीक है, या इसने यहाँ पे मुझे दिखा दिया। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा आप लोगों से, इसका आप जवाब मुझे टेक्स्ट चैट में दे सकते हैं। अब इनमें से कुछ जो हैं वो पासवर्ड और यूजर नेम के साथ कॉम्बिनेशन वर्क किए हों, ठीक है। लेकिन अब मुझे कैसे पता लगेगा कि यहाँ से बगैर ब्राउजर में देखे कि ये वाला कॉम्बिनेशन काम किया और ये वाला कॉम्बिनेशन काम नहीं किया? ये आपके सामने मैंने दिखा दिए, ठीक है। इसको आप देखें और जहाँ से मुझे सिर्फ ये देख के बताएं कि यहाँ से क्या, किस तरह से मुझे पता लगेगा कि ये कॉम्बिनेशन काम किया और ये नहीं किया। अच्छा, स्टेटस कोड का किसी ने कहा है, स्टेटस कोड हर केस में चेंज नहीं होता। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें स्टेटस कोड सबका सेम ही है, 302 ही है। हर रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड इसमें 302 है। तो स्टेटस कोड वाली थ्योरी यहाँ पे आपकी जो है वो काम नहीं करती। इसके अलावा और क्या चीज़ होती है? अच्छा, ओके। मैं आपको उस पर गाइड कर देता हूँ। दो चीज़ें होती हैं जो हम रिस्पॉन्स में देख रहे होते हैं। एक तो होता है स्टेटस कोड, ठीक है। लेकिन स्टेटस कोड नॉर्मली आप जितने भी एप्लीकेशंस बन रही हैं उनमें बहुत सारी रीडायरेक्शंस के बाद जा रहा होता है और ये रीडायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो इधर स्टेटस कोड आपको मोस्टली सेम ही नजर आएगा इवन इफ योर पेलोड वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कंटेंट लेंथ की बेस पे देखना पड़ता है कि ये वाली रिक्वेस्ट काम की है। अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके रिस्पॉन्स में आपको नजर आएगा कि आपको इधर एक कुकी असाइन हो गई है, ठीक है, जो कि नॉर्मल रिक्वेस्ट में नहीं होगी, जो काम नहीं किया तो उसमें आपके पास आप देखेंगे कि इसमें कुकी नहीं है, ठीक है। तो ये सेशन कुकी आपको मिल गई है, जिसकी बेस पे मुझे ये पता लग गया कि अच्छा ये वाला जो एडमिन एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड है ये काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये मुझे कुकी नज़र आ गई है और मेरे पास स्टेटस लेंथ में बाकी सबकी 145 आ रही है, इसकी 268 आ रही है, ठीक है। हम और भी किसी के देख लेते हैं। अच्छा, अब ये भी मेरे पास काम किया है, ठीक है। इसकी भी मुझे अब देखें मेरे पास यहाँ पे ही कुकी आ गई है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि लेंथ जो है फॉर एग्जांपल इसकी 268 थी, ठीक है, अगला जो काम किया उसकी 308 हो। वो कुकी की लेंथ और उसमें चेंजिंग आ सकती है, इसलिए ये नहीं है कि 268 वाली आपने देखनी है। सिर्फ जो बाकी एक नॉर्मल 145 है उससे जितनी भी डिफरेंट होंगी हमने वो सारी डिफरेंट वाली मैनुअली जाके देखनी है। उस बेस पे हम देखेंगे कि वो रिक्वेस्ट काम की है कि नहीं की।
ठीक है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि मेरा ख्याल है ये इंट्रूडर का सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो अब हम ये करते हैं कि हम यहाँ से आगे चलते हैं और हम इसको एक बार लॉगिन कर लेते हैं, ताकि हम अगली फंक्शनैलिटी जो है, एडमिन इसका एडमिन अकाउंट का पासवर्ड है, तो हम इसको यहाँ से आगे जाके देख लेते हैं। अच्छा, अब जो नॉर्मल मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी जो कि बर्फ स्वीट में हमें मिलती है वो मैंने आपको दिखा दी हुई है अभी तक। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिकोडर फॉर एग्जांपल मॉड्यूल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पैरामीटर वैल्यू है जो कि बेस 64 इनकोडेड है। ठीक है, मैंने उसको डिकोड करना है, लेट्स से ये बेस 60 डिकोड एज बेस 64 है। ठीक है, तो मैं उसको डिकोड करूंगा, यहीं पे मैं उसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मुझे उसकी डिकोडिंग वैल्यू दे देगा। यहाँ या मैंने इनकोड करना है, कई बार हमें अपने पेलोड्स जो होते हैं एक्सेस के लिए या SQLi के लिए, वो हमें एक पर्टिकुलर इनकोडिंग स्कीम में इनकोड करके डालने पड़ते हैं, क्योंकि प्लेन अगर प्लेन वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, वो एक्सपेक्ट करती है कि आप जो अपना जो भी पैरामीटर की वैल्यू है वो इनकोडेड आ रही होगी। तो आपको फिर अपना पेलोड भी जो है वो बेस 64 इनकोड या कई बार यूआरएल इनकोड करके डालना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर एल्स, बबस्यूट आपको ये लेवरेज देता है कि आप यहीं पे डिकोडर मॉड्यूल के अंदर जाएं और यहीं से आप इनकोड भी अपना कोई पेलोड करना है वो करने, और आपको फिर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वापस वो भी इनकोडेड ही आएगा ऑब्वियसली। तो वो आप यहाँ पे जाके बस उसको बता दें कि आपने डिकोड किस फॉर्मेट में करना है, तो वो आपको उस फॉर्मेट में, या यूआरएल डिकोड है तो अब यूआरएल डिकोड में आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा देगा कि इसका यूआरएल कोड का यूआरएल डिकोड का ये रिजल्ट है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। इसके बाद ये एक डमी एप्लीकेशन है जो कि एक बैंकिंग एप्लीकेशन को सिमुलेट करने के लिए बनाई गई है। जिस तरह अगर आप व्यू अकाउंट समरी करेंगे तो यहाँ पे आपके पास, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास उसकी अकाउंट हिस्ट्री और ये जो है वो चीज़ें आ रही होंगी। व्यू रिसेंट ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ डेट डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है वो कब आई हैं और क्या आई हैं। यहाँ पे दो अकाउंट्स अवेलेबल हैं, आप दोनों को देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो हम इंट्रूडर टैब की बात कर रहे थे, मैं आपको फजिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ। एक वेलेबिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं आईडोर वेलेबिलिटी, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। इसके हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी का उस तरह से वर्कशॉप नहीं है। अभी हम सिर्फ ज़्यादा बर्फ स्वीट को ही डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसकी क्या कैपेबिलिटी है और आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि इंट्रूडर टैब और किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। लेट्स से कि मेरे पास एक ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, और मैं इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेता हूँ। ये जो रिक्वेस्ट है जो कि शायद जो कि अकाउंट डिटेल्स देखने के लिए मुझे नज़र आ रही थी, इसको मैं भेज देता हूँ अपने इंट्रूडर के पास। ठीक है, यहाँ से मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ इसे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने देखना है कि इसको हम सबसे पहले क्लियर करेंगे, और मैं अगर मैं मैनुअल टेस्टिंग के दौरान मुझे नज़र आता है कि अच्छा इसके दो अकाउंट थे। ठीक है, और चीज़ें चेंज कहाँ पे हो रही हैं, यहाँ से मैं इसको एक बार बंद कर दूंगा। अच्छा, और जो अकाउंट है वो इसी तरह से सेम, सिर्फ एक 1 का डिफरेंस है, मतलब एक इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं एक दिमाग में एक थ्योरी बनाना शुरू करूँ कि अच्छा बाकी अकाउंट्स अगर इस पे उस तरह से ऑथराइजेशन कंट्रोल्स नहीं लगे हुए, और फॉर एग्जांपल हो सकता है कि अगला अकाउंट 8 टेट्रा 02 पे पड़ा हो और मैं उसको देख सकता हूँ, तो वो वाली थ्योरी मैं मैनुअली भी टेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन जब हम पीओसी बनाते हैं तो हम मास हैकिंग का पीओसी बनाते हैं या मास एक्सप्लॉइटेशन का पीओसी बनाते हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं हर इधर बार बार इंक्रीमेंट करता जाऊँ, हर किसी का जाके देखूं और मैनुअली स्क्रीनशॉट लूं जाके। ठीक है, तो अगर मैं वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई नहीं भी होती या कर भी लेता हूं तो सिर्फ मैं ये आखिरी वाले दो सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं ऐड में डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ से क्लस्टर बॉम्ब भी रख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सिंपल लिस्ट नहीं दूंगा इसे, यहाँ पे मैं इसे नंबर्स दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको रैंडम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और सीक्वेंशियल भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि 00 से मैंने करना है 99 तक। ठीक है, और स्टेप मैंने करना है 1 का। ठीक हो गया। यहाँ पे मिनिमम इंटीजर्स वैल्यू भी मैंने 2 रखनी है और मैक्सिमम भी मैंने 2 रखनी है। ठीक है,
यहाँ पे मुझे क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो मुझे उसको 0 देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब हम यहीं पे रखेंगे, इसी तरह से रखेंगे। ये सिलेक्ट हो गया सब कुछ, ऑप्शंस में मैंने कुछ चेंज नहीं करना है सच। तो बस बेसिकली मैं वापस टैग टैब पे जाऊंगा और इसको मैं स्टार्टर टैग कर दूंगा। अच्छा ओके, हम एक चीज करना रह गया, जो मुझे इसको स्नाइपर ही मैं रखूंगा। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप कि वो सिर्फ वो वाली जो 0 0 आखिरी वाले 0 0 में उनको चेंज करके सबका मुझे ये ला के दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब इस केस में कंटेंट लेंथ भी चेंज हो रही है और स्टेटस कोड भी चेंज हो रहा है, तो इसमें हमारे लिए आइडेंटिफाई करना इजी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी करता है, तो इसको मैं मैन्युअली फिर जाके बाद में देख रहा हूँ। बस बेसिकली ये मुझे क्योंकि वो रिडायरेक्ट हो रहा है तो इसलिए मुझे रिस्पांस में वो वाला सब कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसके लिए मुझे रिडायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये समझ आ गएगा कि इसमें 7 तक जो है ना अकाउंट्स हैं, इससे आगे 8 वाला जो अकाउंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो उस केस में उसने मुझे ये सर्वर इंटरनल एरर थ्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मुझे ये समझ आ गई कि इसमें 7 0 7 तक अकाउंट्स हैं, इनको फिर मैं मैन्युअली जाके देख लूंगा और इसका जो डाटा होगा वो मैं रिट्रीव कर लूंगा। ठीक है, बाकी इसमें ये वाले अकाउंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनका स्टेटस कोड 500 है, तो वो एरर में रिजल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे आईडोर मैंने एक रेटिफाई कर लिया और एक वो आईडोर के थ्रू मैं जितने अकाउंट्स के डिटेल्स देख सकता हूँ मैंने वो कर ली। अब इसको बेसिकली हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन, कि आप किसी अपने से ज़्यादा प्रिविलेज वाले का डाटा नहीं देख रहे, लेकिन आप सिंपली बाकी यूजर्स जो कि इनका जिनके प्रिविलेज आपके जितने ही हैं आप उनका डाटा देख सकते हैं, लेकिन उनका भी डाटा कॉन्फिडेंशियल है जो कि शायद आपको नज़र नहीं आना चाहिए था। तो बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन आपने अचीव कर लिया। इस वल्नरेबिलिटी को बेसिकली हम आइडोर कहते हैं, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, हमने सीक्वेंसर की बात नहीं की। सीक्वेंसर आप ज़्यादातर नॉर्मली आप यूज़ करेंगे भी नहीं, तो इसको हम बीच में से स्किप कर दें तो कोई मसला नहीं है। कंपेयरर, अगर आपने कोई रिक्वेस्ट रिस्पांस कंपेयर करके देखना है कि उस रिस्पांस में और नए वाले रिस्पांस में क्या डिफरेंस है, तो आप पुराने वाला रिस्पांस यहाँ रखेंगे या रिक्वेस्ट यहाँ रखेंगे और नए वाली रिक्वेस्ट रिस्पांस यहाँ रखेंगे, तो आप देख सकते हैं ये आपको कंपेयर करके हाईलाइट कर देगा चीज़ें कि इस रिक्वेस्ट या इस रिस्पांस में ये चीज़ें डिफरेंट हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि आपका जो एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का रिस्पांस है और जो अगर आपने कुछ अगली रिक्वेस्ट में चेंज किया तो उसका रिस्पांस में दोनों रिस्पॉन्सेज में क्या क्या चीज़ें चेंज हैं, तो आप यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक्सटेंडर का आपको मॉड्यूल नजर आएगा यहाँ पे। ये एक वेब स्टोर है यहाँ पे जिसमें डिफरेंट एक्सटेंशन है, जिसमें आप जो मैंने ऐड की हुई है वो उन पे आप टिक देख सकते हैं, जो कि मैं डिफरेंट पर्पजेज के लिए ऐड कर रहा होता हूँ। आप लोड और अनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे हर टाइम ये सब नहीं चाहिए होती, तो इस वक्त मैंने सिर्फ दो और 3 एक्सटेंशन लोड की हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 4 एक्सटेंशन। तो आप अपनी जब आप फिर एडवांस काम इसमें करने शुरू हो जाएंगे, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तो फिर आप अपनी मर्जी के लिए और अपने जो है वो जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं उसको आसान बनाने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ से डिफरेंट एक्सटेंशंस इनको देख सकते हैं कि ये क्या करती हैं। यहाँ पे उनकी थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ जाती है और उनका थोड़ा सा यूजेज का आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। तो वो आप यहाँ से जो उनसे आपको लगे तो आप उसको बेसिकली सिंपली यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपने पास। अच्छा, कोई भी अलर्ट होगा तो वो आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रही है या फेल हो रही है, तो वो अलर्ट आपको जो है वो इस अलर्ट्स टैब में बर्बसूट दिखाना शुरू कर देगा। तो वो आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। टारगेट टैब में आपको हमारी पहले बात होगी है कि टारगेट टैब में इस तरह से एक हायरार्की ट्री और उसका एप्लीकेशन का हायरार्की एक तरह से आप उसका जो फ्लो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एडमिन एग्जिस्ट करता है तो एडमिन के ये 2 पेजेस हैं, जो एक एक्सएलएस है और एक जीएसपी है, ये इसका रूट फोल्डर है। तो इस तरह से आपको चीज़ें यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। हिस्ट्री की हमने बात कर रही है, अभी हमने जितने रिक्वेस्ट की हैं या जितनी पेजेस पे हम मैनुअली गए हैं, तो ये सब आपको देखने हैं कि यहाँ पे लॉक हो रही हैं। और वो लॉक क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने इसको ऐड टू स्कोप किया हुआ है पहले से। क्योंकि अभी हमें ऐड की नहीं दे रही, रिमूव की दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने पहले से स्कोप में ऐड किया हुआ है। बाकी किसी भी ये सब इन सब में से किसी की भी रिक्वेस्ट उसके बाद ऐड नहीं हुई जब हमने इसको ऐड टू स्कोप कर लिया। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपने जो टारगेट जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं उसको आपने सबसे पहले ऐड टू स्कोप करना है,
ताकि आप कोई चीज़ बाद में अगर आप HTTP हिस्ट्री को रिव्यू करते हैं तो उसमें कुछ रह ना गया हो, तो आप उसको जो है वो बाद में फिर रिव्यू कर सकें, और इसमें से अगर कोई इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट आपको बाद में लगती है तो वो आप रिपीटर या इंट्रूडर में भेज के उसको फर्दर उसको टेस्ट कर सकें। अच्छा, वी आर टेकिंग क्वेश्चंस, तो किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो उसके चैट बॉक्स में लिख दे या हैंड रेज कर दें। अच्छा, किसी ने पूछा हुआ है कि हाउ वुड यू ब्रूट फोर्स अ साइन इन पेज दैट द कैप्चा इनपुट टू। ओके, सो कैप्चा के भी बहुत सारे बाईपासेस अवेलेबल हैं, तो बेसिकली कैप्चा रेट लिमिटिंग को अवॉइड करने के लिए ही लगाया जाता है। अगर तो कैप्चा सही से इम्प्लीमेंट किया गया तो उस केस में रेट लिमिटिंग अप्लाई हो जाती है, तो उस केस में हमारे पास विंडो बहुत छोटी होती है कि आप बार बार नहीं कर सकते उस पर टैग। लेकिन अगर कैप्चा जो है वो मिसकनफिगर्ड है या सही तरह से उसको इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, तो तब मिसकन्फिग्रेशन की वजह से कैप्चा भी आपका यूजलेस ही होता है। अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन हैं तो वो या तो हैंड रेज कर दे या मीटिंग चैट में पूछ ले, क्योंकि वी आर जस्ट अबाउट टू एंड। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक डिफरेंट डिबेट है कि इज इट लीगल टू टेस्ट एनी लाइव वेबसाइट यूजिंग बर्बस्वीट। देखें, उसमें बर्बस्वीट का कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। बर्बस्वीट इज बेसिकली अ टूल, ठीक है। आप उसको अच्छे काम के लिए यूज करें, बुरे काम के लिए करें, वो आपकी अपनी मॉरल एथिक्स और उस पर उन ग्राउंड्स पे डिपेंड करता है। अगर आप बैंकिंग साइट का पूछते हैं तो नहीं, आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता कि आप किसी भी बैंकिंग साइट पर जाके उसको टेस्टिंग शुरू कर दें। इट्स टोटली इलीगल, ठीक है। एज लॉन्ग एज उस बैंकिंग साइट का या उस कस्टमर का कोई VRDP, जिसको हम वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम कहते हैं, वो चल नहीं रहा और उन्होंने पहले से उसको एडवर्टाइज नहीं किया हुआ, और उन्होंने कहीं पर लिखा नहीं हुआ कि आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो आप हमें यहाँ पे रिपोर्ट करें। तो अगर उन्होंने इस तरह की कुछ चीज़ अपनी वेबसाइट या किसी भी फॉरम पे मेंशन की हुई है, तो उस केस में ये होता है कि उनका कोई VRDP प्रोग्राम है जिसको वो इंडोर्स कर रहे हैं, उस केस में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका कोई इस तरह की चीज़ मेंशन नहीं है तो इट्स नॉट लीगल टू टेस्ट एनी लाइव वेबसाइट। इसलिए इस तरह की चीज़ें टेस्ट करने के लिए बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि हैकरवन, बगक्राउड, जहाँ पे कस्टमर्स आके अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो आप उनको जो है वो कर सकते हैं। देखिए, काली लिनक्स, आपने खुद ही इसका जवाब दीजिए। काली लिनक्स का कोई कोई फायदा उस तरह से नहीं होता। काली लिनक्स सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड आते हैं, ठीक है, और आपको उनको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ इट्स टोटल यूज ऑफ काली लिनक्स, ठीक है। इसके बाद उनको टूल्स का यूजेज, उनसे आपने खेलना कैसे, उनको अपनी किस तरह से यूज करना है, वो सारा आप पे डिपेंड करता है और आपको स्किल सेट पे डिपेंड करता है। आप वो सिर्फ आपका टाइम बचा देगा कि आपके बहुत सारे टूल्स ढूंढने और उनको फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में लेके आना, और फिर आपको जो है वो उनको कॉन्फ़िगर करना और उनको यूज़ करना सीखना, तो वो आपका थोड़ा सा टाइम सेव कर देता है। लेकिन इवन इफ यू हैव काली लिनक्स और यू डोंट नो हाउ टू टेस्ट एंड, मतलब आपको ये नहीं पता कि टेस्टिंग कैसे करनी है और उन टूल्स को यूज़ कैसे करना है, तो काली लिनक्स भी आपको एक आपके लिए यूजलेस ही है। नॉर्मली आप देखेंगे लोगों को काली लिनक्स इसलिए वो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें उनको प्री कॉन्फ़िगर्ड मिल रही होती हैं, तो उनको वो जो टाइम इन्वेस्ट करना होता है टूल्स को कॉन्फ़िगर करने में, इंस्टॉल करने में, हर चीज़ को उसके मुताबिक लेके आने में, वो टाइम सेव हो जाता है आपका थोड़ा सा। बिल्कुल भी नहीं। काली लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो चीज़ है ये इट्स अ टूल। सो काली लिनक्स तो एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह ये आप सेम सवाल है कि आप मेरे से पूछें कि विंडोज़ जो है वो वेब स्यूट का अल्टरनेट है कि नहीं, तो बेसिकली ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इन दोनों के यूजेस भी डिफरेंट है और इनका बनाने का मकसद भी डिफरेंट है, और ये यूज़ भी डिफरेंट चीज़ों के लिए हो रहे हैं ऑब्वियसली।
although you do find burp suite already configured in Kali Linux. वाईफाई फिशिंग आई कांट रियली आंसर, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि ये वो इस टॉक के स्कोप में आती नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप वाईफाई फिशिंग कर रहे हैं तो आप मुझे नहीं पता कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो सॉरी आपको मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकूँगा। हाँ, वाईशार्क नॉर्मली स्निफिंग के लिए ही यूज़ हो रहा होता है। आपकी जो पैकेट स्निफिंग है नॉर्मली उसी के लिए यूज़ होता है वाईशार्क, लेकिन वो नेटवर्क बेस्ड होता है, वो नेटवर्क की ट्रैफिक को स्निफ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका स्निफिंग कहने से ये मतलब है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये बर्बसूट की जगह वाईशार्क यूज़ कर लेंगे तो देन इट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि दोनों एक डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे हैं। स्निफिंग में सिर्फ नेटवर्क ट्रैफिक इंटरसेप्ट हो रही होती है, और उसमें अगर HTTPS ट्रैफिक है तो उस तरह से वो नज़र नहीं आएगी जिस तरह से मेरे पास इधर लिबर्टी है उस चीज़ों को देखने की। वो सिर्फ नेटवर्क स्निफर है। अगर किसी का भी और कोई भी सवाल है तो वो मीटिंग चैट में लिखते हैं। वी आर जस्ट डूइंग द Q&A फॉर नेक्स्ट 10 minutes and then we'll just wind this up. और ये बर्तन उठा लो इधर से। Sorry. Kindly mute your mics, please. If anybody has any questions, then they can raise their hand too, and they can write in the chat box as well. So let me know if there are any questions. अच्छा, वो जावा SDK और जो काली लिनक्स वाली चीज़ है, अगर आपने काली लिनक्स किया हुआ तो आपको जावा SDK अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ उनके लिए थी कि अगर किसी ने काली लिनक्स इंस्टॉल नहीं किया और वो अपनी होस्ट मशीन पे ही वर्क चलाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको SDK करना पड़ता है ताकि वो आपकी जार फाइल को जो है वो चला सके, जो कि बर्ब की नॉर्मली जार फाइल आती है, स्टैंड अलोन जो जार है। अगर किसी ने इंस्टॉल कर लिया बर्ब स्वीट तो वो फिर आपको SDK की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास काली लिनक्स है तो आपको SDK अलग से भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। गेम्स के लिए भी आप बर्ब स्वीट ही नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इफ़ यू सर्च फॉर दैट काइंड ऑफ ए हुकिंग और प्रॉक्सिंग ऑन द इंटरनेट, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो कि आपको, अगर आपने किसी गेम की रिक्वेस्ट को जो है वो इंटरसेप्ट करना है तो उस केस में भी आप जो है वो ये अचीव कर सकते हैं। और अब आपका बर्ब स्वीट ही उस तरह की रिक्वेस्ट को भी पास करने के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन उसको क्योंकि ऑब्वियसली वो ब्राउज़र से जनरेट नहीं हो रही हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसको करने की थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। अच्छा, CA इज़ बेसिकली सर्टिफिकेट अथॉरिटी। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने CA इंस्टॉल नहीं किया हुआ और आपने उसको ट्रस्ट नहीं करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, तो जो HTTP की ट्रैफिक है वो आपको आप इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे अपने बर्ब में, क्योंकि बेसिकली वो इंक्रिप्टेड ट्रैफिक है और आपके ब्राउज़र को नहीं पता कि ये वाला जो CA है ये इसको डिक्रिप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, सर्टिफिकेट अथॉरिटी का। सो बेसिकली अगर आपने CA इंस्टॉल नहीं किया हुआ जो बर्ब का है और उसको ट्रस्ट नहीं किया हुआ अपने ब्राउज़र के अंदर, तो आपका ब्राउज़र जो है वो आपके बर्ब को HTTPS ट्रैफिक जो है वो इंटरसेप्ट करने नहीं देगा।
तो उस केस में उस ट्रैफिक HTTPS ट्रैफिक को ब्राउजर एंड पे डिक्रिप्ट करने के लिए मुझे एक CA जो ऐड करवाना पड़ेगा ब्राउजर के अंदर, जो उसको मैं एक्सप्लिसिटली ट्रस्ट कर रहा हूँ ऑन द बेस ऑफ वो यूजर वैलिडेशन होती है। तो वो बेसिकली मैं एक जो आपका ट्रस्ट चेन है उसके अंदर उसको ऐड कर दूंगा कि मैं एक्सप्लिसिटली ब्राउजर को कह रहा हूँ कि मैं इस सर्टिफिकेट को ट्रस्ट करता हूँ, तो ये सर्टिफिकेट भी मेरी जो HTTPS की ट्रैफिक है उनको डिक्रिप्ट कर सकता है। तो उस केस में मुझे CA जो है वो लाजमी जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। पेड वर्जन में मैंने आपको 3 डिफरेंसेस बताए हैं, जो कि मेन डिफरेंसेस यही हैं। कुछ ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह ये आप प्रो एक्सटेंशन देख रहे हैं, तो कुछ एक्सटेंशंस हैं जो कि सिर्फ प्रो वर्जन के लिए, जो प्रोफेशनल वर्जन के लिए हैं, और वो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे जाकर टेस्टिंग कर रहे हैं। मेरे पास ये लाइसेंस्ड है, तो मुझे क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं, तो फिर हमने लाइसेंस किया हुआ है इसको। लेकिन अगर आप वैसे इमेच्योर कर रहे हैं तो मुझे नहीं ख्याल आपको लाइसेंस वाले की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ स्कैनर का मॉड्यूल आपके ट्रायल जो आपके पास वर्जन है, फ्री वर्जन, उसमें नहीं होगा। इंट्रूडर जो है उसकी लिमिट जो है वो 100 की होगी रिक्वेस्ट करने की। जिस तरह मैं 5 से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता इंट्रूडर से, मैं 100 रिक्वेस्ट जो है वो एक टाइम पे कर सकता हूँ। उसकी लिमिट आपको 100 की हो जाएगी। और फिर एक और अटैक होता है CSRF अटैक, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। उसका अगर आप रिक्वेस्ट का POC या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोफेशनल वर्जन में एक ऑप्शन होती है जो आपको बना देती है। तो फ्री वर्जन में आपको उसको खुद HTML में कोड करना पड़ता है। तो ये सिर्फ यही चीज़ों का फ़र्क है, इसके अलावा कोई ऐसा मेजर फ़र्क नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आप दोबारा भेज सकते हैं, क्लियर नहीं है कि कैन बी चेंज ओनली द पेलोड और एनीथिंग इन द HTTP रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी सब कुछ हम HTTP रिक्वेस्ट के अंदर ही चेंज कर रहे थे। यहाँ पे भी अगर मैं कुछ रिपीटर के अंदर भी चेंज करता हूँ तो ये HTTP रिक्वेस्ट के अंदर ही मैं चेंज कर रहा हूँ। ये अगर मैं कुछ निकालता हूँ तो ये रिक्वेस्ट के अंदर ही चेंजिंग है। यहाँ पे इसको कुछ और करता हूँ या यहाँ पे कोई और पेलोड डाल देता हूँ तो वो भी इसके अंदर ही चेंजिंग होगी। तो अगर आप ये पूछ रहे थे तो उसका मैंने जवाब दे दिया। अगर आप कुछ और पूछ रहे हैं तो वो आप काइंडली थोड़ा एलैबोरेट कर दें। विल जस्ट वेट फॉर 3 more minutes। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो 3 मिनट में पूछ लें। उसके बाद आई विल हैंड ओवर इट टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड उन्होंने अगर कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी को इसलिए ज़्यादा कवर इस आज के सेशन में नहीं कर पा रहे क्योंकि आज हमारा मेजर फोकस जो था वो इस टूल को समझने में था। ये टूल हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए हमने ज़्यादा अटैक्स और अटैक वेक्टर्स और उनके बारे में बात नहीं की है। अगर किसी ने मेरा पिछला सेशन देखा हो तो उस केस में हमने ज़्यादा बात जो है वो टूल को छोड़ के हमने ज़्यादा अटैक्स पे जो है वो कंसंट्रेट किया था। लेकिन उसमें मैंने फ़ील किया था कि आप नॉर्मल लोगों को जो है वो बेसिक चीज़ें ही क्लियर नहीं हैं। तो उस केस में फिर इस बार ये था कि पहले आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत हैंडी आएंगी इन सब चीज़ों को समझने में, आप उससे फेमिलियर हो जाएं। उसके बाद वंस यू आर ओके बाय यू व्हेन यू यूजिंग बर्स्टफीड, तो उसके बाद हम फिर इसको फर्दर एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर हम ज़्यादा अटैक्स की बात करेंगे और टूल्स की हम कम बात करेंगे। आई गेस सवाल सबने पूछ लिए हैं जो जिसके थे। तो आसिम आई गेस यू Alright, कैन टेक इट अप।
Yeah. So I think the question answer session is ended now, and all the participants are requested to kindly fill the feedback form so that we can make sure the attendance of the participants. And yeah, the certificates will be awarded on that basis. So please fill